بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی والا محاورہ تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن اگر وہی مرغی چوری ہو جائے یا مر جائے تو مالک بھی شاید ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ پاکستان سے سونے کی پوری کان چوری ہو گئی، لیکن پاکستانیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، بلکہ شاید 90% پاکستانیوں نے اس خبر میں دلچسپی ہی نہیں لی۔ ناظرین، ہفتے کے روز ورلڈ بینک کے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے ریکوڈک کیس میں پاکستان کو مجموعی طور پر 5 ارب 97 کروڑ ڈالر یعنی 944 ارب روپے ہر جانے کی مد میں ادا کرنے کی سزا سنائی ہے۔ یہ رقم اتنی ہی ہے جتنی پاکستان کو آئندہ 3 سال میں IMF سے بطور قرض ملنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ کس کی خطاؤں کی سزا ملک بھگت رہا ہے؟ پاکستان جیسے غریب ملک کے سونے اور تانبے کے ذخائر پر عالمی سرمایہ داروں نے کس طرح ڈاکہ ڈالا؟ کیسے بلوچستان سے سونا نکال کر گوادر کے راستے کینیڈا، اٹلی اور برازیل لے جانے کی کوشش کی گئی؟ ایک سابق چیف جسٹس کے فیصلے نے کس طرح ملک کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کو اب اس کی کیا قیمت چکانا پڑ رہی ہے؟ پاکستان کی طرف سے یہ کیس عالمی ٹریبیونل میں کس نے لڑا اور کیس ہار کر بھی کتنا مال کمایا؟ ان سب سوالوں کے جواب اور اس خبر سے جڑے دیگر تمام حقائق ہم لائیں گے منظر عام پر اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری حقائق پر مبنی تحقیقاتی رپورٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ناظرین، امریکہ، اسرائیل اور بھارت سمیت عالمی طاقتوں کو بظاہر بنجر اور بے آب و گیا بلوچستان کے پہاڑوں اور صحراؤں میں آخر کیا دلچسپی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ بلوچستان سونے، تانبے اور گیس سمیت بیش بہا قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، جن کی مالیت اربوں ڈالرز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں بھوکے گدوں کی طرح ان وسائل پر کسی بھی لمحے جھپٹنے کو تیار ہیں۔ ریکوڈک میں کتنا سونا موجود ہے؟ بلوچی زبان میں ریکوڈک کا مطلب ہے ریت کا ٹیلا۔ یہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو ایران اور افغانستان سے منسلک سرحد کے قریب واقع ہے۔ 33,47,000 ایکڑ کے اس علاقے میں قریباً 6 ٹن خام تانبے اور 6 لاکھ ٹن سونے کے ذخائر کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا ہے، یعنی اسے سونے کا 5واں بڑا عالمی ذخیرہ بتایا جاتا ہے۔ یہاں چلی کے مشہور ذخائر سے بھی زیادہ تانبا پوشیدہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ریکوڈک میں صرف سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ ریکوڈک کے قریب ہی سیندک واقع ہے، جہاں ایک چینی کمپنی 1 دہائی سے تانبے اور سونے کے ذخائر پر کام کر رہی ہے۔ تانبے اور سونے کے دیگر ذخائر کے ساتھ ساتھ چاغی میں بڑی تعداد میں دیگر معدنیات کی دریافت کے باعث ماہرین ارضیات چاغی کو معدنیات کا شوکیس کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پاکستان محض 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا ہے، لیکن اگر اپنے ان قدرتی وسائل کو نکالا جائے تو کتنے معاشی مسائل دور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، بات شروع ہوتی ہے 1993 سے، جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ذوالفقار علی مگسی نے ریکوڈک منصوبے پر مائننگ کے لیے ایک امریکی کمپنی بروکن ہلز پراپرٹیز منرلز یعنی BPH کے ساتھ معاہدہ کیا۔ بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ محفوظ علی خان کے ایک مضمون کے مطابق چاغی ہلز ایکسپلوریشن کے نام سے اس معاہدے کے تحت 25% منافع حکومت بلوچستان کو ملنا تھا۔ اس معاہدے کی سکوں میں دستیاب رعایتوں کے تحت BHP نے منکور کے نام سے اپنی ایک سسٹر کمپنی قائم کر کے اپنے شیئرز اس کے نام منتقل کر دیے۔ منکور نے بعد میں اپنے شیئرز ایک آسٹریلوی کمپنی ٹیتھان کوپر کمپنی یعنی کہ TCC کو فروخت کر دیے۔ ٹیتھیان نے معدنی ذخائر کی تلاش جاری رکھی، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ریکوڈک کے ذخائر معاشی حوالے سے سود مند ہیں۔ بعد میں کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ اور چلی کی کمپنی انتھوفاگاستا کے کنسورشیم نے ٹیتھیان کاپر کمپنی کے تمام شیئرز خرید لیے۔ انتھوفاگاستا کا تانبے کی کان کنی کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کے بنیادی شیئرز برطانوی افراد کے پاس ہیں اور یہ کمپنی 1888 میں برطانیہ میں ہی قائم ہوئی تھی۔
बैरक गोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी सोना निकालने की कंपनी है जिसका सदर दफ्तर कनाडा में है, मगर ये असलन एक अमरीकी जॉइंट वेंचर और उसके दफातर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हैं। कहा जाता है कि जब अमरीकी कंपनी BHP के साथ टीथियान ने मिलकर काम करना शुरू किया तो दोनों कंपनियों ने मंसूबा बनाया कि बलूचिस्तान से सोना और तांबा निकालकर गवादर के रास्ते कनाडा, इटली और ब्राजील को फरोख्त किया जाए। इस घिनौने खेल की भिनक जब पाकिस्तानी हुकाम को पड़ी तो बलूचिस्तान हुकूमत को होश आया और तयशुदा कवायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जी पर कंपनी का ठेका मंसूख कर दिया गया। मुआहदे के मुताबिक रेकोडिक्स से हासिल शुदा मुनाफे का सिर्फ 25% बलूचिस्तान हुकूमत को मिलना था और बाकी 75% बैरूनी कंपनियों की जेब में जाना था, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत को भी 25% उसी सूरत मिलना था अगर वो इन कानों में 25% सरमायाकारी करती। यानी असल में बलूचिस्तान की ज़मीन और वसाइल इस्तेमाल करने के लिए बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान को कोई अदायगी नहीं हो रही थी और यही असल डाका था जो पाकिस्तान के वसाइल पर मारा जा रहा था। यहाँ एक बारीक सा नुक्ता अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि इन ठेकों में दरअसल सोने का जिक्र तक नहीं हुआ था और बाज़ ज़राए के मुताबिक तांबे की आड़ में सोना भी निकाला जाता रहा और हर 28 ग्राम सोने के लिए 79 टन के जहर आलूद अज्जा जिनमें आर्सेनिक भी शामिल थी वो ज़मीन में दफन होते रहे और माहौल के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन पानी और कारेजों को जहरीला करते रहे। पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से मीडिया में इन कानों को तांबे की कानों के नाम से मशहूर किया गया ताकि सोना खामोशी से निकालकर बहती गंगा में हाथ धोए जा सकें। नाजरीन, तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ? रेकोडिक के हवाले से बलूचिस्तान के बाज़ सियासी हलकों में ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे कि रेकोडिक मुआहदे में बलूचिस्तान के अवाम के मफादात का ख्याल ही नहीं रखा गया, इसलिए मुआहदे को पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मगर हाई कोर्ट ने इस हवाले से मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। बाद में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। जनवरी 2011 में ही नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान रेकोडिक से खुद सोना और तांबा निकालकर $2 अरब सालाना और मजमूई तौर पर $131 अरब हासिल कर सकता है। गैर मुल्की कंपनी धातों को खस्ता हालत में ही मुल्क से बाहर ले जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर टीथियान के साथ होने वाले मुआहदे को कालाअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी ने माइनिंग लाइसेंस के हुसूल के लिए दोबारा हुकूमत बलूचिस्तान से रुजू किया। उस वक्त की बलूचिस्तान हुकूमत ने लाइसेंस की फराहमी के लिए ये शर्त रखी थी कि कंपनी यहां से हासिल होने वाली मादनियात को रिफाइन करने के लिए बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी। हुकूमत की जानिब से चागी में रिफाइनरी की शर्त रखने के साथ साथ बलूचिस्तान के हिस्से को भी बढ़ाने की शर्त भी रखी गई। सैंदिक प्रोजेक्ट से कोई खातिर खा फायदा न मिलने के बायस हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये शराइत बलूचिस्तान को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए रखी गई थी। कंपनी की जानिब से इन शराइत को मानने के हवाले से पेशरफ न होने और महकमा बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स 2002 के शराइत पूरी न होने के बायस मादनियात की लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने नवंबर 2011 में टीथियान कॉपर कंपनी को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ TCC ने सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स हुकूमत बलूचिस्तान के पास अपील दायर की, लेकिन वो भी मुस्तरद हो गई। 2011 में लाइसेंस मुस्तरद होने के बाद TCC ने पाकिस्तान में किसी फोरम में जाने की बजाय 2 बैनुल-अक़वामी फोरम से रुजू किया। इनमें से एक आलमी बैंक का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स था, जहां TCC ने 12 जनवरी 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ $16 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। ट्रिब्यूनल ने 12 जुलाई 2012 को जर्मनी के क्लॉस सॉक्स की सरबराही में समाअत शुरू की। पाकिस्तान की जानिब से पहल बरतानिया के लियोनार्ड होफमैन पेश होते रहे। बाद में पाकिस्तानी कानूनी टीम की सरबराही बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर की अहलिया शीरी ब्लेयर ने की। फ्रीक मुखालिफ यानी टीथियान कॉपर कंपनी की जानिब से बल्गारिया के स्टैनिमर अलेक्जेंडो ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश होते रहे। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार करदा मौक़िफ़ में ये बात भी शामिल थी कि TCC ने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों को रिश्वत देकर इब्तदाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद इलाके अपनी लीज में शामिल कराए थे। ताहम आलमी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि नामवर एटमी साइंसदान समर मुबारक मंद ने जो बयान 2011 में सुप्रीम कोर्ट में दिया था
वहीं उन्होंने सालसी ट्रिब्यूनल में भी दोहराया कि रैकोडेक में 131 अरब डॉलर के असासे हैं और पाकिस्तान सालाना 2.5 अरब डॉलर मालियत का सोना और दीगर धातें निकाल सकता है। डॉक्टर समर मुबारक मंद के इस बयान को बुनियाद बनाते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रोजेक्ट इतनी बड़ी मालियत का है तो जुर्माने की रकम भी ज्यादा होनी चाहिए। इस मुकदमे के दौरान पाकिस्तान के वकला की टीम 4 बार तब्दील हुई। बाहर मुमालिक के वकला ने भारी फीसें तो वसूल कर लीं, लेकिन मुकदमे को मंतकी अंजाम से पहुंचाने से पहले ही इससे अलहदगी इख्तियार करते रहे। टोनी ब्लेयर की अहलिया बरतानवी बैरिस्टर शेरी ब्लेयर को भी 1 अरब रुपए फीस की मद में अदा किए गए और वो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के बकौल हुकूमत बलूचिस्तान फीस की मद में 2.5 से 3 अरब रुपए अदा कर चुकी है। चंद हफ्ते कबल वजीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान ट्रिब्यूनल में केस हार गया है और अब महज जुर्माने की रकम का तयन होना बाकी रह गया है। नाजरीन, ये केस 7 साल चला और पाकिस्तान ये केस हार गया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुआहदे को कलअदम करार देते वक्त कानून से नाबल्द थी और इसके पास पेशावराना महारत नहीं थी। फैसला आने के बाद जहां मुख्तलिफ अफराद की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया, वहीं विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसलों की कीमत पाकिस्तान मुसलसल अदा कर रहा है। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के फैसलों का असर-ए-नौ जायजा लेने और इन फैसलों से होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए एक आला सतही कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ रैकोडेक केस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद भी शामिल थे, जो इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस हैं। जस्टिस गुलजार अहमद दिसंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं? सालसी फोरम की जानिब से बतौर हरजाना जिस रकम का तयन किया गया है, माहिरीन के मुताबिक अगर बलूचिस्तान के गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान बजट के हुजूम को देखा जाए तो ये तकरीबन बलूचिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर है। पाकिस्तान को IMF से इतनी ही रकम 3 साल मुद्दत में मिलनी है। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रैकोडेक मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमीशन बनाने का हुक्म दिया है, जो इस बात का तयन करेगा कि आलमी ट्रिब्यूनल के फैसले में पाकिस्तान केस क्यों हारा और भारी जुर्माना क्यों हुआ। कमीशन इस जुर्माने के जिम्मेदारों का तयन करेगा और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा है कि पाकिस्तान नजरसानी समेत तमाम दस्तयाब ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। उनके मुताबिक कुछ पहलुओं पर नजरसानी के लिए 3 माह तो कुछ में 3 साल तक का अरसा लग सकता है। ताहम अनवर मंसूर के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ अपील का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है। अनवर मंसूर का यह भी कहना था कि टीथान कंपनी ने मुज़ाकरात की दावत दी, जो कि खुशाइंद है और हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पाकिस्तान को जितने बड़े नुकसान का सामना है उसको कम करने के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। ये मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बात की बात है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बसूरते दीगर रैकोडेक के असास से टीथियान कंपनी के पास चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या माशी बहरान से दो चार पाकिस्तान इतनी बड़ी रकम अदा करने का मुतहम्मिल हो सकता है? नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी, आपको कैसी लगी? इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मज़ीद तहकीकाती रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल हक़ाइक़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हाजिर होंगे एक नई तहलकाखेज़ स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।